write for newspapers. I did survey for Hindustan Times also for the ranking of schools, and I am a national awardee also. So this is my profile. Yeah, thank you so much, Dr. Bhatia, and I'm very glad to hear about you, and I hope so. This will be the very wonderful for us. Mr. S.K. Singh, sir, please introduce yourself. Then I can start our training. A very good morning and happy Navratra to one and all those who have joined. Of course, this is the platform where we are going to share our experiences about education. So, in a short, I was born in a village, and my teaching aid was Mango Tree and the primary school, which was having only one classroom. And after schooling, I moved to Allahabad University, did my graduation, and then did my master's with computer science as well as Hindi literature. And then I did my management from Guru Jambeswar Hisar, and just completed my master's with education from IGNOU. As experience is concerned, I started my career from Delhi Darshan Education Foundation. After 7 years working in Saudi Arabia, I came India 2007. So Darshan Academies, they are a group of school run by Darshan Education Foundation from Delhi. So around 3 years, then moved to Nepal border called school as a US Academy and Institute. I worked there as a director and as well as a principal for 2 schools and 1 degree college. And then journey started with GEMS education for 4 years. Of course, Rao sir was mentor guide who keep guiding till the date. After GEMS, moved to JNK, worked there as a principal for one of 27-year-old school called JK Public School. Of course, JNK for outside people was different. For me, Matarani has been very kind. I experienced my specialization, I must say, in result and academic enhancements, and school was continuing 5 years top school of the state. And then joined other organization. I was general secretary for JNK Sahodaya Group, and then I joined other principals forum as a national coordinator, All India Edu Leaders. And right now I'm in process of framing a new organization which is called Global Edu Leaders, where we have planned to connect 20 countries, especially the Asian countries, those who are connected and looking towards the India. In nutshell, in a short, I am aiming what we say in conference, are we taking to the classroom? This is a project where we are working and connected with more than 1,000 principals across globe. That's all in short I can say. Thank you so much, sir. And last but not least, Dr. Sudarshan Rao, please introduce yourself to our panel. I'm Sudarshan Rao. I did my MSc from BITS Pilani way back in 1978. I have worked with premier institutions of India like DPS, APJ, and GEMS for more than 30 years. I also worked in Jaipur as a principal of Mahavir Public School sometime maybe in 90s. And currently I'm engaged in educational improvement program in vast number of schools across the country. And at present I am director of DSCRT Gurgaon. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much to all of respective leaders. And here we are connecting each other. कि अभी हम लोग यहाँ पर कुछ विशेष प्रोग्राम के लिए जो कि अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं हेल्प इंडिया परिवार के द्वारा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए आज हैं और इसमें से डॉक्टर राव ऑलरेडी हमारी हेल्प इंडिया परिवार के एक बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं ऑलरेडी और बहुत ही जुनून के साथ हमारी हेल्प इंडिया परिवार में काम भी कर रहे हैं। और उसके लिए डॉक्टर जगदीश पारिक साहब से इनका रिक्वेस्ट था कि हम लोग मीटिंग करेंगे और कुछ अपनी जो एकेडमीज हैं या फिर बैगलेस स्कूल्स हैं हमारे हेल्प इंडिया परिवार की तरफ जो एजुकेशन सेक्टर है वो हमारे एजुकेशन सेक्टर
से आप लोग किस तरीके से हम लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे हेल्प इंडिया परिवार को कैसे कुछ और भी सेवाएं मिल सकती हैं आप लोगों के जो वास्ट एक्सपीरियंस आपका है उसके तहत। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर जगदीश पारिक साहब हैं, बलवीर शर्मा सर हैं और डॉक्टर पवन पारिक साहब हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर पवन पारिक सर को थोड़ा सा आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। डॉक्टर पवन पारिक सर, प्लीज कम ऑन द पैनल एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्लीज स्पीक विद आवर पैनल न्यू कमर्स। डॉक्टर पवन पारिक सर। सर मैं मूलतः बीकानेर जिले के नोखा से हूं और अभी वर्तमान में जयपुर रह रहा हूं। और ये साइनवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिंगापुर में हमने स्टेम सेल थेरेपी के लिए वर्क स्टार्ट किया था। रिडजी स्कूल डॉक्टर जगदीश जी के साथ में जॉइंट वेंचर में है और हेल्प इंडिया के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट हमने इनके मेंबरों तक पहुंचाने के लिए सुगम तरीके से इनको स्टार्ट किया था। उसके अलावा वर्किंग विद एसबीआई लाइफ लास्ट 14 ईयर में कंटिन्यू एमडीआरटी क्लब अमेरिका का कंटिन्यू मेंबर भी हूं और उसके अलावा 4 टाइम टीओटी 1 टाइम सीओटी जो हाईएस्ट रैंक होती है ये अचीवर इंडिया में मैं एकमात्र व्यक्ति हूं और करीब करीब 113 फॉरेन ट्रूप में मैंने इंडिया का एसबीआई से प्रतिनिधित्व किया है 113 बार विदेश यात्रा में। और इसके अलावा 4-5 कंपनियां जो रनिंग में हमारी काफी अच्छी वर्क कर रही है, गोल्डन ड्यून्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डन एरा और अविवा कोर्स प्राइवेट लिमिटेड, बी2मी ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी कंपनियां रनिंग कर रही है। और उसके अलावा सोशल प्रोफाइल जो है मेरी, मैं विपर फाउंडेशन जो काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, करीब करीब 8 लाख रजिस्टर्ड मेंबर है और उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अभी करीब करीब 100 से ज्यादा जिलों में उसके बहुत बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, फूड पैकेट, अनाज वितरण इस कोरोना महामारी को लेके। उसके अलावा ऑल इंडिया पारिक महासभा, महर्षि पारासर फाउंडेशन, यूनेस्को क्लब, बहुत सी संस्थानों में, मित्र भारत संस्थान जिसको पूरा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का अनाज वितरण का काम मिल रखा है। इन संस्थाओं से लंबे टाइम से, एक नचिकेता गुरुकुल है, इन सब संस्थानों में मैं महामंत्री का दायित्व ही लगभग निभा रहा हूँ। और इन संस्थाओं को ऑर्गेनाइजेशन करने में, संगठन बनाने में, इसी पार्ट में हेल्प इंडिया का संगठन कैसे बने, किस तरह से बने, लीगल उसका कैसे फुल प्लेस एकदम ओके रहे, उसके लिए डॉक्टर जगदीश जी ने मुझे हेल्प इंडिया में ज्वाइन करवाया और बलवीर जी ने ज्वाइन करवाया। और मुझे लग रहा है हम भी अभी सामाजिक संगठन के रूप में काफी बेखूबी से काम कर रहे हैं। कल मैंने एक सोशल मीडिया पे सम्मानीय मैसेज डाला था और उस मैसेज के मार्फत अब तक करीब करीब 100 लोगों के द्वारा 1 लाख की राशि, छोटी छोटी राशि, 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, वो 1 लाख रुपए लगभग क्रॉस करने वाली है। तो इस तरह के काम मैं बहुत लंबे वर्षों से कर रहा हूँ। दिल्ली में रोशनारा रोड पे केवल मेरी फेसबुक के मार्फत बहुत विशाल का भवन बना। जयपुर में मेरी सोशल मीडिया के मार्फत पिछली स्टेट गवर्नमेंट ने 2000 मीटर लैंड अलॉट की एजुकेशन के लिए, स्किल के लिए। और उदयपुर में हम लोगों ने जमीन खरीद कर बहुत बड़ा कॉलेज भी स्टार्ट कर दिया है। ये सारा मेरा सोशल मीडिया के मार्फत किया हुआ वर्क है। और हर साल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा शिक्षा निधि एक प्रकल्प चलता है, आप मेरी फेसबुक में और में देखोगे तो सारा मिल जाएगा। शिक्षा निधि प्रकल्प चलता है जिसमें केवल व्हाट्सएप और फेसबुक के मार्फत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल शिक्षा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और उनकी वितरण कैसे होता है, क्या होता है, ये सारा विपर फाउंडेशन की पूरा वेबसाइट पे मिल जाता है आंकड़ा। तो इस तरह के कार्य मैं बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ और इन्वॉल्व हो रखा हूँ और मेरी सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और रुचि रहती है। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Pawan Parik sir, and thank you so much. And just for a little of the minute, I would like to invite Mr. Balveer Sharma sir, who is the energetic and he is the source of energy for our Help India Parivar. So I would like to introduce my your leader and the Balveer Sharma sir. Please introduce yourself. I will hand over जी to the नमस्ते session to Mr. Parik. Yeah.
नमस्ते। पहले तो मैं लीडर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस से पहले मैं चाहता हूँ कि जो डॉक्टर पवन सर ने इंट्रोडक्शन दिया अपना, वो मात्र 5% भी नहीं था। इनका इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त है कि ये सेशन पूरा इनके इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा। मैं गौरव पल बताता हूँ आपको कि डॉक्टर साहब ने भारत का नाम रोशन करने के साथ साथ 29 देशों से ज्यादा 100 से ज्यादा यात्राएं विदेश की है और उसमें भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। दशकों कंपनियों में एमडी पद पर है, सीएमडी पद पर है और ना जाने अनगिनत कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको ये बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा बायोडाटा है। और मैं बलबीर शर्मा हूँ, एक हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव का एक रहने वाला एक साधारण सा इंसान हूँ और बहुत सारी एमएलएम इंडस्ट्री में काम किया। 2002 से लेकर 2011 में मैंने फ्यूचर गैलेक्सी नाम की अपनी एक कंपनी चलाई जो शॉर्ट टाइम पर 4 साल चली, लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री में बहुत सारी उतार चढ़ाव आने के बाद, बहुत सारी सिस्टम चलने के साथ शाइन सिटी नाम की कंपनी की, जिसमें मैंने इंडिया में टॉप किया। और अब 14 फरवरी 2019 में मैंने हेल्प इंडिया को डॉक्टर जगदीश पारिक जी के माध्यम से ज्वाइन किया। बहुत खुशी होती है कि जब से हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म चूज किया उसके बाद एमएलएम इंडस्ट्री या कुछ और सब कुछ भूल गया और अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के साथ साथ मैंने वर्मा जी 2-3 चीजें ऐसी इसके अंदर देखी, मैंने पहले डिस्कस आपके साथ किया है लेकिन आज फिर कर रहा हूँ कि मेरे लाइफ में, मैं अपने लाइफ में बताता हूँ आपको, लगभग 17-18 कंपनियों को मैंने ज्वाइन किया, बहुत कुछ देखा, लेकिन इंडस्ट्री में मैंने पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म चूज किया जिस प्लेटफॉर्म में आप खुद को साबित करके अगर आप डेडिकेटेड होके काम करते हो तो आप किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं। यह मैंने खुद अपने आप में पाया कि एक छोटे से गांव का जहां पर 4 फुट से ज्यादा बर्फ गिरती है, उस गांव में जहां पर मात्र कच्ची सड़कें हैं, जिस गांव में दिन भर 3 या 4 बस आती है, जहां पर कोई बड़े बड़े स्कूल, कोई बड़े बड़े कॉलेज, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, उस गांव का एक इंसान, कम पढ़ा लिखा इंसान अगर डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है तो आज आप सबके सहयोग से राष्ट्रीय प्रभारी पर नियुक्त हूं और आज 50,000 से ज्यादा का ग्रुप ऑल इंडिया में हेल्प इंडिया का मेरी मार्फत, मेरे माध्यम से बन चुका है। वर्मा जी खुद मेहनत इतनी ज्यादा की कि इंडिया का पहला सीटीएट का गौरव प्राप्त किया और डॉक्टर जगदीश पारिक जी के माध्यम से, इनके डेडिकेशन से, इनकी आइडियोलॉजी से, इनके विजन से और लगातार हिमाचल से जयपुर 1200 किलोमीटर दूर लगातार जाता गया, महीने की 3-4 मीटिंग्स अटेंड करता गया, एनर्जी इतनी मिलती गई कि उसके बाद इंडिया का फर्स्ट सीटीएट बना, इंडिया का फर्स्ट एक्टिव सीटीएट बना, इंडिया का फर्स्ट एरिया सीटीएट बना और अभी कुछ चंद दिन पहले इंडिया का पहला सर्किल सीटीएट बना हूं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा था सर। थैंक यू। जय मां भारती। जय मां भारती sir. Thank you so much sir. Thank you so much for your powerful wordings. And now this is the time of joy, and I would like to hand over the session to Dr. Jagdish Parekh. He is the Help India Parivar founder member. And Dr. Jagdish Parekh, I am glad to introduce you, and please come on the panel and हम लोगों को अपनी कुछ बातें बताएं और हम तरीके से ये सेवा मिल सकती है हमारे डॉक्टर्स को, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सीनियर पर्संस हैं, तो कैसे हम लोग आपके साथ में काम और अधिक तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से। धन्यवाद पंकज जी। आज का जो ये सेशन आपने रखा है, मेरे ख्याल से ऑनलाइन एक पैनल डिस्कशन हो गया है ये, क्योंकि जिस तरीके की मैं पैनल की लोगों की प्रोफाइल देख रहा हूँ, आपने अपना पूरा जीवन ही एजुकेशन को समर्पित कर दिया है। They all are very senior in education. And थोड़ा मैं बता दूं कि शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट के साथ में डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल्स का ट्रेनिंग, इवन रजिस्ट्रार लेवल तक का ट्रेनिंग मैंने शिक्षा के क्षेत्र में लिया है। इसके अलावा विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में ट्रेनिंग की है और देश विदेश की जितनी भी संस्थान है जो एजुकेशन से संबंध रखती है, ट्रेनिंग से संबंध रखती है या स्किल से संबंध रखती है, मैं कहीं ना कहीं उनसे एसोसिएटेड हूँ, कनेक्टेड हूँ। और आप सब लोगों को भी मैं देख रहा था, सभी लोग अपना परिचय दे रहे थे।
सभी प्रबुद्धजन आज हम जुड़े हैं इस मीटिंग में। सबसे पहले तो मैं परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करूंगा इस पैनल डिस्कशन में। और दूसरी बात मैं जो रखना चाहूंगा वो ये, आप सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र से हैं, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं जो भी बात बोलूंगा, जैसे एक प्रिंसिपल है लाइकिंग प्रिंसिपल की, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का होता है वो अगर पार्टी में भी मिल जाता है तो जल्दी दोस्त बन जाता है। हम बस में भी, जैसे पंकज जी इंजीनियर है और उन्हें अगर कोई इंजीनियर मिल गया तो तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे दोनों। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा एक दूसरे से कनेक्ट होने में, बिकॉज वॉट एवर थिंग्स आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, वो सारी चीजें आप लोग पहले से कर रहे हैं एंड यू लाइक दोज थिंग्स। अभी मैं थोड़ी सी यात्रा बताता हूं कि कैसे और क्यों इस तरीके के प्लेटफॉर्म को बनाने की आवश्यकता पड़ी। बिकॉज एज ए एजुकेशनिस्ट आप लोगों के जहन में एक सवाल जरूर होगा कि डॉक्टर साहब आप जब रिसर्च में हैं, इवन हम MHRD और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा रिसर्च सेंटर चालू है, तो ये प्लेटफॉर्म बनाने की क्या नौबत आ गई, या ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जितने भी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हेल्प इंडिया में जुड़े हैं मेरे साथ, उन सब ने भी मुझे ये सवाल पूछा था। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं उसके ऊपर। ट्रेडिशनल तरीके से डाइट में जो गवर्नमेंट डाइट्स होती है, वहां से लेके यूनिवर्सिटीज की जो ट्रेनिंग्स हैं वो सारी करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि जब तक एक मिशन पे, क्योंकि जितने भी टीचर्स प्रिंसिपल्स आते थे, आप तो बहुत रिनॉर्ड स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं, या आपने जो सर्व किया है वो प्राइवेट सेक्टर को सर्व ज्यादा किया है, वहां बहुत डिसिप्लिन होता है एजुकेशन में। लेकिन सरकारी सेक्टर की हालत बताता हूं आपको कि जो भी प्रिंसिपल आते थे वो ट्रेनिंग में बैठने के बाद उन्हें ये तो जरूर यकीन हो जाता था कि ये बहुत ही वर्थफुल सेशन रहा उनके जीवन का, लेकिन उनका पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो यही काम करता था कि सर मेरा TADA का जो लेटर होता है उनका, उस पर आप कब साइन करेंगे। तो मेन जो कंसर्न है, और वो लोग भी एक तरीके से ऐसे दिखे कि सिस्टम से बंधे हुए हैं। हर प्रिंसिपल मुझे यही बोलता है कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई या सिखाया, लेकिन एग्जीक्यूशन हम नहीं कर पाएंगे जाके। और गवर्नमेंट ने आपके 3 दिन, हमारे 3 दिन दिए हैं, ये हमारे लिए नॉलेज इनहेंसमेंट साइड में बहुत ठीक है, बट प्रैक्टिकली स्कूल में जाके, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिलेबस है और हम जिस लिटरेसी एजुकेशन से जुड़े हैं, वहाँ वो जो सिलेबस का डंडा है वो हमें पूरा कंप्लीट करना होता है ऑन टाइम। और जितनी भी बड़ी स्कूल्स हैं उन्होंने तो पूरा साल का एक दिन पहले से ही प्री डिजाइन होता है उनका, कि कौन से दिन क्या करना है। कैलेंडर ईयर पहले ही डिक्लेयर हो जाता है कि आपको इस दिन ये पढ़ाना है, ये समझाना है, ये बताना है। तो बस वो एक स्ट्रक्चर बाउंड्री के अंदर जाके ही काम करना होता है। मैं सभी प्रबुद्धजनों की एक और विशेष चीज देख रहा था कि सभी लोग जो आज जुड़े हैं, सारे एजुकेशनिस्ट, उनमें भाटिया जी जरूर थोड़े दूसरे ग्रुपों में भी उन्होंने सर्व किया है, बट CBSE के साथ ऑफ कोर्स आप काम कर रहे हैं। बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं DPS से जरूर कनेक्ट हैं। आपको बताऊं कि जयपुर DPS के जो प्रिंसिपल हैं वो भी आए थे, और हम दोनों ने एक कोलैबोरेशन भी किया है हमारी नन्ही स्कूल के लिए जो बैगलेस है, और उन्होंने हमें बोला है कि वो इसके लिए पुरजोर, मतलब इस चीज का साथ देते हैं, और वो जो चाहते थे अपने लाइफ में कुछ करना, वो वैसा ही प्रकल्प हमारा प्रकल्प है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और आप सभी लोग उसी ग्रुप से कनेक्टेड हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी जो बात है वो आप लोगों को भी कनेक्ट करेगी। मेन जो अभी पॉइंट है वो ये है कि जो आने वाली सदी है और वहां पे जो एजुकेशन जिस तरीके से चेंज होगा या अभी चेंज होता जा रहा है, वो सारी चीजों को डील करने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी। दूसरा, एजुकेशन से मैं मेरी स्कूल खोल के मेरा अच्छा सा, मतलब एक, अगर मुझे इनकम का सोर्स बनाना है मैं बना सकता हूँ,
लेकिन मैं ये सोच के साथ कार्य कर रहा था कि भारत के मोस्ट ऑफ द पीपल या लास्ट एंड तक कोई व्यक्ति है वो हमारे से कैसे जुड़ जाए। मुझे ये समझ में आया कि 21वीं सदी का अगर पावरफुल कोई तरीका है लोगों को एक साथ लाने का, दैट इज नेटवर्क। एजुकेशनिस्ट के लिए नेटवर्क का काम थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट सा होता है क्योंकि जानकारी नहीं होती ना इन सब चीजों की। लेकिन अभी तक जिस तरीके से ईश्वर की कृपा से जो कार्य हो रहा है, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इस 2020 के अंत तक करीब 1 करोड़ लोग हमारे परिवार से टच होंगे, लाभान्वित होंगे। और इस शिक्षा के क्षेत्र के रिवॉल्यूशन को हेल्प इंडिया कैसे देख रही है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब जब मैंने ट्रेनिंग्स करी या लोगों को गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स करी या 1-to-1 जब मुझे मौका मिला, मैंने कहीं क्लासरूम लेक्चर लिया, कॉमन एक ही बात देखी मैंने कि व्यक्ति सुनने के बाद कनेक्शन में नहीं रहता है। तो कनेक्शन में कैसे रहेगा वो? क्योंकि आप जैसे एजुकेशनिस्ट अगर एक फ्लोर के नीचे सारे लोग आ जाएं तो क्या होगा कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन हम सब लोगों की व्यस्तताओं के चलते, हम सब लोगों के अलग अलग कार्यों के चलते, हम सब लोग एक फ्लोर के नीचे आके काम नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, एक सिनर्जी जो बननी चाहिए, ये रिजोनेंस जो अभी मोदी ने क्रिएट कराया है ना सबसे थाली बजवा के, ये ऐसा रिजोनेंस हम सब लोगों को एजुकेशन में भी लाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे अकेले की ऊर्जा पार नहीं पा सकती भारत की आबादी को। मेरी सोच बहुत ठीक है, बट उस सोच को जमीन पे लाने के लिए मैं चाहता हूं कि देश के जितने भी अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं या इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने रोल में हैं, वो अपने रोल के साथ साथ एक सामाजिक सरोकार के हिसाब से हमारी जो एजुकेशन की विंग है उसको भी थोड़ा समय दें। क्योंकि हम सब लोगों की ऊर्जाएं अगर एक दिशा में लग गई तो मैं बोलता हूं कि निश्चित रूप से देश में परिवर्तन आएगा। हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ करता हूं आप लोगों को। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत काम चल रहा है इंडिया में और कई सारे एंटरप्रेन्योर बन के भी आ रहे हैं। लेकिन एक बात जिसका एक वर्ड मैं जिसको बोलूंगा, दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। 21वीं सदी में बिजनेस के तरीके भी बदलने पड़ेंगे लोगों को, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ेगा या सारी चीजें टेक्नोलॉजी वाइज इतनी अपग्रेड हो जाएगी कि आपको अपने सामाजिक सरोकार को आगे रखना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। तो ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के जो बात मेरे जहन में आई, ये मेरे अध्ययन काल के दौरान ही मेरे ब्रेन में आ गई थी। और वहां पे विडंबना ये थी, जहां मैं अध्ययन कर रहा था वो देश से बाहर पढ़ रहा था मैं, तो वहां पे इसका एग्जीक्यूशन संभव नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये एग्जीक्यूशन इंडिया में कर दिया जाए, क्योंकि ये एक्चुअल में हम लोगों की ही ताकत थी। आज वेदोक्त एजुकेशन की बात करें, जिसपे मैं रिसर्च करता हूं, तो वेदोक्त एजुकेशन रिसर्च ये बोलता है कि शिक्षा का मतलब है चरित्र निर्माण, शिक्षा का मतलब है आपका सोशल कंट्रोल, समाज पे नियंत्रण, और शिक्षा का मतलब है फाइनेंशियल फ्री होना जीवन में। लेकिन वो जो शिक्षा पहले मिलती थी वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस में लैक कर रही है, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है तो फाइनेंशियल फ्री नहीं हो रहा है, और पढ़े लिखे का सामाजिक नियंत्रण है आजकल, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे बोलते हैं ज्यादा पढ़ लिया ये मूर्ख आदमी। तो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ भी एक दिक्कत है, क्योंकि उनका जो लिसनिंग का कैपेसिटी होता है या लिसनिंग को लेके जो उनकी पावर होती है वो कहीं ना कहीं मिस कर जाती है फिर। और लर्निंग विंडो क्लोज होने का मतलब उस दिन एक एजुकेशनिस्ट का या एक किसी भी साधारण व्यक्ति का वो उसका लास्ट डे होता है ग्रोथ का। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हर पढ़ाने वाले टीचर में, हर पढ़ाने वाले अध्यापक में, प्रिंसिपल में, सभी लोगों में कहीं ना कहीं आ जाती है। कुछ लोग हैं जिनमें ये चीज वो बार बार उसको ठीक करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं। तो मैं मानता हूं कि वो लोग मतलब बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। अब बात ये है कि ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है इसको भारत में कैसे लाया जाए। तो
इसको लाने के समय मेरे पास सिर्फ एक एजुकेशन ही ऐसा रास्ता था जिसके माध्यम से मैं इसको ला सकता था। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जहां शिक्षा है वहां पे फिर पैसे नहीं, और जहां पैसे हैं वहां पे शिक्षा नहीं। तो थोड़ा सा मतलब कनेक्शन नहीं बन पा रहा था कि मैं शिक्षा के साथ लोग पैसे भी कमाएं, ऐसा कैसे कर सकता। हाँ ठीक है, मैं 100, 50, 200, 500 को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, देन वो अगेन जाके सिखाएंगे, लेकिन वो सिखाते नहीं है। क्योंकि उनका एक कॉल मुझे समझ में आ रहा था जो 2008 से रेगुलर मैं फील कर रहा था कि वो स्टक हो जाते हैं फाइनेंस को लेके कि हम आगे क्यों करें। तो एक फाइनेंशियल कॉल इसके अंदर आए, और जो फॉरेन कंट्रीज में लोग एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं उसका रास्ता नेटवर्क ही था। लेकिन भारत में भारत सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं थी इसको लेके। लेकिन जब इसका विचार हेल्प इंडिया का मैं बनाया तो उसी समय भारत सरकार भी बड़ी फुर्ती से मतलब उन्होंने स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे पूरी एक गाइडलाइन बना दी कंज्यूमर अफेयर्स की, और वो ही गाइडलाइन को डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई। हमने लीगल जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, अधिवक्ता हैं, उन लोगों के साथ जाके एक लीगल ओपिनियन हेल्प इंडिया के लिए रेडी करवाई। और वो लीगल ओपिनियन रेडी करवाने से ये हो गया कि लीगली हम इस संस्था को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं रहेगा। इवन हमारे जो बोर्ड है, लीगल बोर्ड है, उसमें मतलब न्यायमूर्ति खुद मतलब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि वो लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे सरोकार को अब हम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन की एक विंग है, उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उदयपुर से एक बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, वो अभी बीजेपी के राजस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। और ऐसे कई शख्सियत जो अच्छा काम कर रही है अलग अलग एरियाज में, हम उन्हें हमारी विंग में एसोसिएट भी कर रहे हैं। शिक्षा को पूरे कंट्री लेवल तक पहुंचाने में पहले तो शिक्षा को मुझे लगा कि मतलब विभाजित करना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसको ले जाया जाए, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट चलाऊं और लास्ट छोर के व्यक्ति को टच करूं, इस बात में बहुत फर्क है। तो इसके लिए अगेन एजुकेशन में हमने एक स्कूलिंग जैसा इन्वायरमेंट बने। तो स्कूलिंग कैसी, क्योंकि स्कूल तो ऑलरेडी बहुत चल रही है, तो एक डेमो स्कूल हमने बनाई। उसमें हमने माई स्कूल जो यूरोप की स्कूल है उसके साथ एक कोलैबोरेशन किया, क्योंकि उनके जो बोर्ड में जो लोग हैं, हम भी उनके बोर्ड में हैं वैसे। और उसको 2019 का प्राइमरी स्कूल का खिताब भी मिला है कि शिक्षा में उनकी गुणवत्ता नंबर 1 पे है। यूरोपियन यूनियन से रिकॉग्नाइज हुए हैं वो लोग। और उनकी जो टेक्निक्स हैं जो फॉरेन में पढ़ाते हैं टॉप 5 कंट्रीज, उन टेक्निक्स को और इंडिया का जो कल्चर रहा है एजुकेशन को लेके, उन दोनों को हमने ब्लेंडेड किया है इस स्कूल में। और वैसे ही हमने एक एकेडमी बनाई है जो 10-12 तक आफ्टर स्कूल में काम करती है। वो फ्लेक्सिबल लर्निंग से पढ़ाती है। फ्लेक्सिबल लर्निंग इज अ टेक्निक जिससे फॉरेन कंट्रीज में बच्चों को परमानेंट लर्निंग सिखाई जाती है। तो उसको हमने उसमें समायोजित किया है। कुछ बहुत सारे आजकल एजुकेशन में मतलब डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो बाइजू आप देख रहे हैं कि 1-1 साल के सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हैं बड़े अच्छे अमाउंट पे, और माँ बाप भी सोच रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है, ले लो। हम सोच रहे हैं कि ये डिजिटल एजुकेशन भी बच्चों को मिले, लेकिन पैसे नहीं लगे उसके, हमारे परिवार के बच्चों के लिए फ्री रहे। और चौथा जो विंग डिजिटल एजुकेशन के बाद हमने बनाया, फिजिकल ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स, जिसमें हर ज्वाइन व्यक्ति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एसेस करवा के, जो उनकी असेसमेंट बॉडीज हैं लाइक डीजीटी है, एनएसडीसी है, या प्रॉपर और भी कई सारी बॉडीज हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की कई बॉडीज हैं, वहां से एसेस करवा के उन्हें एज ए गवर्नमेंट कोच सर्टिफाइड करवाने का काम भी हम कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई सारे बैचेस निकाल दिए हैं, और हम चाहते हैं कि हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में एक कोच बन जाए। वो कोच क्या करे, वो हेल्प इंडिया का वॉलंटियर भी है, सरकारी कोच भी है सर्टिफाइड। वो ये रिवॉल्यूशन को धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाए, और पहुंचाने के साथ उसकी जो जीविकोपार्जन है वो भी चले, क्योंकि फाइनेंशियल टच नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमने इसमें थोड़ा फाइनेंशियल टच भी दिया है। और
पता चला कि सिर्फ एजुकेशन के कोच से ही पूरे कंट्री पे काम नहीं हो सकता है, और इसके लिए कई सीनियर्स कंसल्टेंट्स ने हमें सजेस्ट किया। हमने इसका वृहद रूप बनाया। उसके बाद एजुकेशन के साथ हमने प्रिवेंटिव हेल्थ को रखा, जो भारत के लिए जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का अगला हिस्सा है, जो 5 साल बाद में जाके इसका प्रॉपर रूप, इंडिया में 10 साल बाद जाके प्रॉपर रूप इसका लोग समझेंगे, वो हमने आज ही शुरू कर दिया। वैसे ही जो एजुकेशन पेडागोजी की बात करूं तो उसमें जो चीजें अब होगी उनको हमने इनिशिएट कर दिया है, क्योंकि ट्यूशन क्लासेस बहुत चल रही होगी लेकिन वो लर्निंग पे वर्क नहीं करते हैं। दे जस्ट लाइक एक स्किल के ऊपर काम करना, और कोर स्किल पे काम भी मेरे ख्याल से कोई स्कूल नहीं करता है। हमारा ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट का मतलब है, जो हमारे ग्रंथों ने बताया है कि जो एक कोर स्किल्स होती है इंसान की, कम से कम उसमें वो अपने एजुकेशन काल में पारंगत हो जाए। और वो 8 प्रकार की कोर स्किल भी मैं देख रहा हूं कि जितने भी बच्चे इंटरव्यू में आते हैं या इंटरव्यू को फेस करते हैं, इवन उनको इंटरव्यू क्रैक करने की स्किल भी नहीं आती, और उसकी वजह से उनकी नौकरी नहीं लगती। और इंडस्ट्री जो अभी प्रोड्यूस कर रही है, मतलब डिग्री कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी कई प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बातचीत चलती है तो एक कॉमन कंक्लूड निकल के आता है, यार हमारा काम तो पढ़ाना है, हमारा काम नौकरी लगाना थोड़ी है। बट पिछले साल जो शिक्षा ड्राफ्ट बना है, यूजीसी ने भी इसके लिए एक प्रपोजल दिया है सबको कि भैया 50% बच्चों को प्लेसमेंट भी करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्रमोशन में उसकी मार पड़ेगी। तो ये बात अब इसलिए आने लग गई है क्योंकि सिर्फ पढ़ा के उन्हें पास करके निकाल देना या डिग्री देके निकाल देना यही कॉलेज का काम नहीं रह गया। वो बच्चे प्रॉपर उनका कैलिबर निकाला जाए और किस फील्ड में वो रिलेवेंट है वहां तक उन्हें पहुंचाया जाए, कॉर्पोरेट के साथ उन्हें एसोसिएट किया जाए, उनकी अपस्किलिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी की जाए कॉलेज में। तो इस तरीके से एक इंडस्ट्री रिलेवेंट कल्चर भी अब धीरे धीरे भारत में डेवलप होगा, क्योंकि बेरोजगारी नहीं तो बढ़ती ही चली जाएगी, हम लोग रोक ही नहीं पाएंगे उस चीज को। हम हेल्प इंडिया से ये सारे काम कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं एक छोटी सी लाइट डालता हूँ। देखिए, एक तो पहला कार्य है शिक्षा, जो मैं मानता हूं कि ये बीज की तरह है, बाकी सारे काम भी महत्वपूर्ण हैं, पर ये बीज अगर नहीं लगेगा ना हर भारतीय में तो बड़ा चेंज नहीं आएगा। इस बीज के बाद जो पहला सुख है स्वास्थ्य, तो लोग क्या है कि जब बीमार होते हैं तब जाके वो अवेयर होते हैं, तब जाके वो अपनी हेल्थ का केयर करना शुरू करते हैं। जितने भी लोग आपको पार्क्स में मिलेंगे या जहां पर भी हेल्थ को केयर करते हुए दिखेंगे ना, आप उन्हें पूछेंगे कि यहाँ कैसे आए, बोले डॉक्टर ने सजेस्ट किया। तो हेल्थ की बात हर कोई करता है, बट हेल्थ ठीक रखने को लेकर बहुत कम लोग काम करते हैं, और वो भी प्रिवेंशन हेल्थ पे। लेकिन अगर हम प्रिवेंशन हेल्थ पे पूरे भारतीयों को जागरूक कर दें और सही बात उन्हें समझा दें, तो मेरे ख्याल से लोग बीमार ही नहीं होंगे, और बीमार अगर नहीं होंगे तो नए हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी एक कंट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसे ही रोजगार को लेके अपस्किलिंग नहीं हो रही है, कॉर्पोरेट रिलेवेंट स्टडी नहीं हो रही है उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो वो जो कॉर्पोरेट्स हैं उनसे हमने कोलैबोरेशन करके उनके क्या अपस्किलिंग मॉड्यूल है वो लेके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। चौथा है कि काम करते करते इस पूरे परिवार में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनमें भी कोई क्राइसिस आ सकता है। मैं आपको एक संगठन बना हुआ है यूएस में, करीब 5 करोड़ डोनर है उसके साथ। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे एक बच्ची स्कूटी से गिर गई थी और उस पूरे संगठन ने $1-1 की हेल्प करी। उस बच्ची को 5 करोड़ डोनर में से 4 करोड़ 18 लाख डोनर ने हेल्प किया। कुछ ही घंटों में, मतलब करीब 36 से 48 घंटों में, आप मानेंगे नहीं, $1-1 हम $1 बोल दो, वो देने से उस बच्ची को 4 करोड़ 18 लाख डॉलर की मदद आ गई। बच्ची का केस था, स्कूटी से गिरी थी और उसकी एक फ्रैक्चर आ गया था उसके। आप सोचिए, $1 देने वाले के लिए कोई बड़ा डील नहीं था वो, लेकिन उस बच्ची के पिताजी के लिए वो बहुत बड़ा डील था। वो क्राइसिस से 1 सेकंड में बाहर आ गए। तो ये पावर है, मतलब सब लोगों का एक साथ लाने का। और यही एक चीज था, मुझे लगा कि ये 21वीं सदी में बहुत इम्पैक्ट करेगा, वर्क करेगा। गवर्नमेंट ने इसकी पूरी गाइडलाइन बना दी है। हम सब लोग एक नेटवर्क बना के कॉमन, और हमारी अगर सारी एनर्जी एक जगह पे लगा दें तो एक सिनर्जी क्रिएट हो जाएगी
और वो सिनर्जी से ये सारे जो सरकार काम चाह रही है, इवन मैंने ये भी स्टडी किया कि यूपीएससी से अपॉइंटेड जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो लोग क्या काम के लिए अपॉइंट होते हैं, तो उनके जो 5 मुख्य सुनियोजित काम सरकार उन्हें सिखाती है या डिसीजन लेना बताती है वो ये 5 ही होते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जरूरतमंद की क्राइसिस में हेल्प, और 5वां जो व्यापारी काम कर रहे हैं वो उसके जिले के सही ढंग से काम करते रहे, उन्हें कोई परेशान ना करे, व्यापार ठीक से चलता रहे। तो ये 5 चीजों को कोलैबोरेट करके हेल्प इंडिया में हमने यहाँ पे हम लाए, ताकि व्यापार जिसको करना है वो व्यापार कर सकता है, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, कई डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए बहुत उत्सुक हैं, वो चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे क्योंकि आने वाला फ्यूचर इंडिया का इसी में है। कई इंडस्ट्रियल रिलेवेंट ट्रेनिंग देने वाले मास्टर ट्रेनर हैं सॉफ्ट स्किल के, वो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, यूरोपियन यूनियन के कई ट्रेनर एसोसिएटेड हैं। दे वांट टू वर्क इन एम्प्लॉयमेंट विंग, जहाँ पे वो चाहते हैं कि बच्चों को नौकरी जल्दी मिले, इंटरव्यू क्रैक कर जाए, वो ये सारी स्किल वो उन्हें सिखाएंगे। और हेल्प में हमने ऐसा सिस्टम रखा है कि नॉर्मल एक मदद का जो संगठन होता है वो ऐसे करता है कि चलिए अभी किसी की मदद करनी है तो हम 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करके दे देते हैं, लेकिन दोबारा जब मदद आती है, तिबारा जब मदद आती है तो वही लोग किनारा करने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं हर बार कब तक पैसा दूंगा। तो हमने यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का मोनोपोली ना बने, उसको लेके सिस्टम को ही पूरा चेंज किया कि 10 रुपए से ज्यादा की हेल्प आपको देनी नहीं है, और वो हेल्प भी आपको ई गवर्नेंस के जो हमारे काम है उससे कैशबैक के रूप में आएगी। मतलब यहाँ पे किसी की भी मोनोपोली भी नहीं बनेगी और छोटी किटी से बड़ा काम हो सकता है। और आपको बता दूं कि भारत जो एजुकेशन वर्ल्ड लीडर था, या भारत जिसको हम गोल्डन बर्ड कहते हैं, इन दोनों चीजों में ये दोनों बातों का बहुत महत्व है। हम जो एजुकेशन वर्ल्ड लीडर थे उसका रीजन था कि जो शिक्षा की रियल डेफिनेशन है उस पे हर बच्चे पे काम हो रहा था, मतलब उसकी जो पिलर जो स्किल्स होती थी उनको नॉरिश करने के लिए काम किया जाता था, जो अभी हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथन की बात है तो वहां पे कम्युनिटी में बहुत लाइव कल्चर था। आज आप मेट्रो सिटीज या इवन मैं तो बोल रहा हूँ छोटी सिटीज में भी आके देखेंगे तो वहां पे अगर कोई पोस्टमैन भी आके पूछ लेना कि शर्मा जी का घर कौन सा है, वर्मा जी का घर कौन सा है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बोलता है कि मुझे पता नहीं, जबकि वो उसके ऊपर ही रहता है। तो इसका कारण है कि हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन वर्चुअल कनेक्शन बढ़ रहे हैं, ऐसे डिस्कनेक्शन आ रहा है इंसान में आपस में। तो ये जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को जरूरत हो उसके जीवन में हेल्प की, लेकिन ये भी है कि सर्टेनिटी भी नहीं है कि नहीं पड़ेगी जरूरत। तो हमने जितने भी जरूरी कोच थे जीवन के उनको लेके एक हेल्प कोच भी बनाया, और डिजिटल तरीके से एक दूसरे की उसमें मदद करनी है घर बैठे बैठे। तो ये पूरा एक हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। मैं अभी अगले 2-3 मिनट आपके और लूंगा, एजुकेशन को लेके मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, फिर हम लोग आपस में भी एक पैनल डिस्कशन करेंगे उसको लेके। जो एजुकेशन को लेके हमने सोचा है उसमें हमने 5 चीजों का समावेश, जैसे मैंने बताया अभी, एक बैगलेस स्कूल बनाना, और उसके लिए जो माहौल चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का, हम लोग ये मानते हैं, इवन आप लोग तो एजुकेशनिस्ट है तो आपके पास तो ये दिन में 100 एग्जाम्पल आते होंगे, मम्मी पापा ये मानते हैं कि 5वीं के बाद ही एजुकेशन होती है। प्राइमरी एजुकेशन को लेके जो हम लोग ये मानते हैं कि वो एजुकेशन बच्चा एक्चुअल में तो थोड़ा बड़ा होता है तभी तो पढ़ता है, लेकिन जितने भी टॉप 5 कंट्रीज हैं, टॉप 10 कंट्रीज हैं, वो बहुत ही कंसर्न है इस एजुकेशन को लेके। तो वो एजुकेशन सब जगहों पे इंडिया में और उसको लेके अवेयरनेस आए। स्पेशली जिस एजुकेशन को लेके मैं रिसर्च में हूँ, दैट इज मेटा स्किल न्यूरो साइंस रिसर्च, और एशिया का पहला रिसर्च सेंटर सरकार के साथ हमने हिमाचल प्रदेश सोलन में स्थापित किया है, और उससे हम हमारे रिसर्च को स्टेट बोर्ड को भी देंगे और MHRD को भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन में बदलाव लाए जाए। तो मैं चाह रहा था कि वो बदलाव की शुरुआत हम लोग तो कर दें, सरकार जब करेगी। तो उसमें
5वीं तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में बैगलेस शिक्षा में जोड़ना, उसमें कैम्ब्रिज हमारी पार्टनर बनी है। टीचर्स ट्रेनिंग को लेके ब्रिटिश काउंसिल लैंग्वेज पार्टनर उसमें हमारे साथ आए हैं कि वो लैंग्वेज को लेके हमारे साथ उसमें काम करेंगे। और ऐसी और भी कई संस्थान हैं जो इसमें हमारे साथ भविष्य में, मतलब हम ओपन है कि वो हमारे साथ जुड़े और हम अच्छा काम करें। जो 6 से लेके 12 तक की एजुकेशन है, वहां पे आफ्टर स्कूल को लेके हमने एक मॉडल रेडी किया है जिसमें बच्चा स्कूल के बाद 2 घंटे आए और परमानेंट लर्निंग का सिस्टम समझे। मतलब ऐसा नहीं कि अभी सेकंड टर्म थर्ड टर्म में जब बच्चे को जाके बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म का कोई क्वेश्चन पूछ लूं, या 9th के बच्चे को 8th का अगर आप क्वेश्चन पूछने जाएंगे तो वो बोलेगा कि सर क्या मजाक कर रहे हो, हमें तो पिछले टर्म का नहीं पता, आप पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों के साथ टेम्पररी मेमोरी बनाने को लेके एक चलन सा चल गया। मतलब बच्चा जस्ट ही और शी में प्रिपेयर जस्ट टू क्रैक दिस टर्म एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम। मतलब उसको ये नहीं है कि ये शिक्षा को लेके मुझे होल लाइफ रहना है या मेरे को किसी और को सिखाने की जरूरत पड़ी तो मैं सिखा सकूं। ये एक चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो क्रेमिंग है वो अपना बहुत बड़ा रूप ले रही है। तो इसको लेके हमने ये फ्लेक्सिबल लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया इसमें। तीसरा, डिजिटल लर्निंग भी जरूरी है क्योंकि डिजिटल जमाने में है, वो सब तक जाए, अच्छे कंटेंट जाए, अच्छे कोर्सेज जाए। तो तय ये किया हमने कि जो शिक्षा में प्राचीन जो 8 कोर स्किल हैं उनके ऊपर प्रॉपर कोर्सेज बना के बच्चे को ये 8 अपनी कोर स्किल को कैसे डेवलप करे, जिसमें लिटरेसी स्किल भी एक स्किल है नो डाउट, बट बाकी अदर स्किल पे भी कैसे वो कंसंट्रेट करे, क्या होती है वो और कैसे उसको जीवन में वो बेनिफिट ले सकता है, उसको लेके प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल लेवल के कोर्सेज इवन मैं खुद डिजाइन करवा रहा हूँ और वो कोर्सेज हम यहाँ पे इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल स्टडीज के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके कोर्सेज हम चाह रहे हैं इसके ऊपर आए जो अप स्किलिंग को लेके हो, इंटरव्यू क्रैक करने की स्किल्स को लेके हो, ताकि बच्चों को घर बैठे बैठे उसका फायदा मिले। चौथा, ट्रेनिंग सेमिनार्स जो सरकारी सर्टिफिकेशंस की बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर किसी स्कूल में जाके लेक्चर लेना है तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन हो। वो बोलेगा हेल्प इंडिया से, तो बोले हेल्प इंडिया से होने से क्या होता है। उसको तभी कोई व्यक्ति एंटरटेन करेगा जब वो गवर्नमेंट से भी रिकॉग्नाइज्ड हो। तो इसमें हम हर मेंबर को गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं जितने भी परिवार में जुड़े हैं। और 5वां विंग है हमारा साइकोमेट्रिक लैब नाम रखा है हमने। उसमें करीब 12 प्रकार के टेस्ट हमने इसमें रखे हैं जो बच्चों की कैलिबर को लेके, उनके आईक्यू को लेके, ईक्यू को लेके डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, जिन टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों को और अच्छा नॉरिश कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में उन्हें हम भेज सकते हैं। तो ये एक जनरल सा, लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन एक जनरल सा हेल्प इंडिया का वृतांत था जिसमें हम काम कर रहे हैं। अभी नंबर लाखों में पहुंच गया है 1 साल में, और इस साल आई होप इसको हम करोड़ों में ले जाएंगे।